السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے، جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی خوبصورت حقیقت آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورتی کسی کو نہیں پایا۔ جس طرح ہم اپنے میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ حقیقت وقت سے پہلے آکار ہو جائے تو شاید اپنی قیمت کھو دے۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اللہ پاک پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ آپ کے جنمزد الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ پاک سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ تجد کا فرق ہے۔ بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔
मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें ही तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी खैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफर है। जुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में दरारें डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। यह देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिज्क अल्लाह पाक के पास है तो तुम रिज्क तलाश न करो बल्कि अल्लाह पाक को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज्क है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में हो तो दिल की हिफाजत करती है। जो लोग आपके काबिल नहीं उन्हें आपसे दूर रखती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह पाक देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह न समझना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था। बेजुबान से भी हमदर्दी करना ना भूलो, यह बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। हजरत अली ने फरमाया, उस चीज का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत जाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह पाक वही मोहब्बत आपको सही इनके जरिए वापस लौटा देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह पाक कभी तो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। माफिया तो गलतियों की होती हैं, अजियतों की नहीं। तो मकाफत अमल होता है, खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब
सब्र कर और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा रह जाता है, और जब अल्लाह पाक के साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी इंसान व आसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह पाक तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से नफरत करते हो और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाती हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदकिस्मती है। तुम्हारी नहीं इज्जत उतनी ही दो जितनी के लोग कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वो वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। सब्र करना और कद करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहत पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। एक वो जहां इन दोनों जहां के दरमियान बस फासला एक सांस का है जो चल रही तो यह जहां जो रुक गई तो वो जहां। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। जो जितना आगाह है उतना ही जिम्मेदार है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इंसान के तमाम गम और परेशानियां उसकी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से आती हैं। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह पाक के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुसीबत का नाजिल होना हलाक के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। जिंदगी का हर लम्हा नियत कीमती है जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा। वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बेहतर हैं। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है इसमें कुछ बाकी न रहेगा, माल या औलाद सब फना हो जाएगा। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा कल उससे महंगे दामों अफसोस खरीदना पड़ेगा। अल्लाह पाक उन चीजों को सख्त नापसंद करता है, ऊंची आंखें, झूठी जबान, वो दिल जो बुरे मंसूबे बनाए, वो गवाह जो झूठ बोले, वो बंदा जो भाइयों के दरमियान झगड़े लगाए, वो पाँव जो जल्दी बुराई की जानिब दौड़े, वो हाथ जो बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, औरत का इम्तिहान गुर्बत में होता है, दिल का इम्तिहान इश्क में होता है, आग का इम्तिहान बाजार में होता है, इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है
बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके और बहुत ज्यादा सब्र करके और बहुत सारी बातें नजरअंदाज करके वो लोग बेहतर हैं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों को लेते हैं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह पाक दुख भरी दास्तां को बड़े ध्यान से सुनता, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है, लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है मगर हम उसका हिसाब रखते हैं। जो ना मिल सका, हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा लोगों का भला जरूर करे, लेकिन उनसे यह उम्मीद न रखे कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वाले को। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है, बेशक वही रब परेशानियों के बाद खुशियां भी देगा। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाएगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं, याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन वक्त से गुजरे हैं और अल्लाह पाक वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जाता, माफ करना और इंसाफ करना। अल्लाह पाक किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह पाक कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक बसी अरीज कब्रिस्तान हो, जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। परेशान न हुआ करो, अल्लाह पाक ने तो तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा है। जो मुकद्दर लिखने वाली जात है उसके पास मुकद्दर बदलने का इख्तियार भी है। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जिसका जर्फ देखना हो उससे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह पाक खुद लेना चाहता है।
तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि जो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में शुक्र है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखे, न झगड़े तवील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इतनी तो कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने न रोए। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कद्र करना हीरो से मिलवा देता है। मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज जिंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम है। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलक रवैये की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि यह जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा नहीं है जितने तंज सवाल दिल दुखाने वाले। तबस अगर सिर्फ जुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकाली कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। दिली खूबसूरती, आला किरदार, अच्छे अखलाक, अंदरूनी पहचान, यह सारी बातें सिर्फ किताबी तौर पर मानी जाती हैं। असल में इंसान हर शख्स को बाहर खूबसूरती, बनावट, रंग, रुतबा, कद, माली हैसियत, फायदा, नुकसान, अमीरी, गरीबी देखकर ही अपनी राय बना चुका होता है। माजी को कोसने से पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वो अपनी उम्र के सफर पर रवा दबा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना यह सफर करता जा रहा है। हर गुजरते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। आसमानों में मकबूल और कबूलियत के राब्ते अलग होते हैं। अक्सर जमीन वालों के सताए हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं, आमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र रहती है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर आजीज से चलना सीखिए, गुरूर के बगैर जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर वो तकलीफ भी रहमत है जो दिल पर गुजरे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह पाक से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह पाक अपने बंदे को काफी नहीं? रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हर एक से चाहे दुश्मनी ही क्यों ना हो, दीन की तालीम, अल्लाह पाक पर यकीन, अंधेरों में भी जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग वाजे हों आपको गलत समझने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कसी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। 7 समंदरों की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुब्तला गम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा। हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर होठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वो जानता है। उससे कहा जाए वो सुनने का मुंतजर रहता है। हर मंजर बदल देगा क्योंकि वो आपका रब है और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो उसे खुशबू से मतर कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने को कहा गया है और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने
की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल हो। तो बस अपने तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को रो धो के जाया न करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक न करो कि अल्लाह पाक क्या कर सकता है। अल्लाह पाक पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है, वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहत याब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पाक पर तवक्ल रखो और सब्र का दामन थामे रखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी न समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ रब के खौफ से। तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह पाक ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करें। बस अल्लाह पाक से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह पाक किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे अमल से अल्लाह पाक की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्ल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है, ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह पाक से सरगोशियां करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयां होते हैं जो अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबस होती है। ये जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, इनमें अल्लाह पाक की मसलियत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएंगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बन जाता, जो अपना होता है वो आंसू बहाने नहीं देता। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। ख्यालों की हिफाजत करो, यह अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो, यह आमाल बन जाते हैं। आमाल की हिफाजत करो, यह किरदार बन जाते हैं। किरदार की हिफाजत करो, यह पहचान बन जाते हैं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाते रहा करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है, जबकि अल्लाह पाक गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। अपने हिस्से का काम करें, बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तंग है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जब रिज्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की लालच नहीं होती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो
वो मानेगा नहीं, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझ लो तो उसे बोलने दो। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह न दे, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। यह जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। सजदे की ताकत यह है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। वजू से शकल, कुरान से अकल और नमाज से पाक होती है। तौबा का दरवाजा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। जिनका भरोसा अल्लाह पाक हो उनकी मंजिल कामयाबी है। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिस जमीन पर फसल ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। उस अल्लाह पाक से डरते रहो जिसकी सिफात यह है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। सबको अपने ऊपर विवश मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलवाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले। जो अल्लाह पाक का हो जाता है फिर अल्लाह पाक उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और उसकी मदद वहां से करता है जिस पर किसी का गुमान भी नहीं होता। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्तों का खौफ ही मार देता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।